अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share, and subscribe, and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चंद ही घंटों में सारे लोग मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। उसूलों के मुताबिक हम एक नए साल में दाखिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग खुशी मनाएंगे, कोविड-19 को भूलकर, रूलिंग पार्टियों के झूठों से आज़ाद, जात पात से दूर। सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। कुछ लोग सेक्युलर एटमॉस्फेयर कायम करने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ऐसी दुनिया कितनी अच्छी होगी जहां जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां सारे लोग सेहतमंद होंगे, एजुकेशन सबके लिए होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी। ऐसी दुनिया एक सपने से कम नहीं है। Within few hours, most of us are going to celebrate New Year. At the rule of the nature, we will enter into a new year. People throughout the world expecting an atmosphere free of exploitation, free of COVID-19, free of lies of the ruling parties, free of bindings of religion which obstructs youngsters to love each other. Some are expecting to create an atmosphere of secular conditions, free of casteism, free of interstate bindings of boundaries. Let us imagine a world to have good health, prosperity for all, education for all, equality, independent of gender, etc. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दलविंदर में वुमेन सर्विसेज ट्रस्ट की जानिब से ज़रूरतमंद के दरमियान एक कंबल स्टेजिंग की तकरीब हुई। पांडेश्वर में मुंडवा सर्विस ट्रस्ट के जरिए बुध के रोज पांडेश्वर दलविंदर गनपाउडूर ग्राउंड में मसाकीन के दरमियान कंबल बांटने का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीबन 300 ज़रूरतमंदों में कंबल की तकसीम के साथ साथ मीडिया के कुछ अहलकारों को एजाज़ से नवाजा गया। मनु सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सतेंद्र प्रसाद ने कहा कि कंबल तकसीम है, लेकिन हमने आज कंबल इन लोगों को दिया है जो वाकई कंबल के हकदार हैं। वो कहा कि ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट मुस्तकबिल में गरीबों में सेहत के मुफ्त जांच पड़ताल करना चाहता है और नर्सिंग के मुफ्त तरबियत का बंदोबस्त करना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें और मुफ्त में सिलाई और ब्यूटी साइन की तरबियत मुहैया कर सकें। हम और भी इस तरह के मुआशरती कामों को जारी रखना चाहते हैं। इस मौके पर मनुस्वय ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सतेंद्र प्रसाद, तर्जुमान सीताराम पंडित, कमेटी मेंबरान राजेश वर्मा, अमित शाह, मनीष सिंह, मिथन, पंकी रविदास, मनोज बर्मन वगैरह मौजूद थे। অনেক মানে কি কম্বল বিতরণ করা তো হয়, কিন্তু দেখি কি যে মানুষ মানে কি সত্যিকারে যারা পাওয়া তারা পায় না কোনো দিন। তো আমরা চিন্তা করলাম মানবসেবা ট্রাস্টকে না আমরা ওদেরকে দিব যারা কোনোদিন আজ পর্যন্ত মানে কি কম্বল পায়নি। আর আপনারাও দেখতে পেলেন আজকে মানে কি যারা অন্ধ, হাত পা নাই, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে আমরা গলি থেকে আজকে ওদেরকে শীত বিতরণ দিলাম। সাথে সাথে আজকে আমাদের করোনা যোদ্ধা সবাই মানে কি ডাক্তারকে প্রশাসনকে দিয়েছে, लेकिन আমাদের পান্ডেশ্বরে কোনোদিন মিডিয়া কর্মীদেরকে দেওয়া হয়নি। তো আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল মিডিয়াদেরকে, লোকাল মিডিয়াদেরকে সম্মানিত করা করোনা যোদ্ধা বলে। কতজনকে কম্বল দান করলেন? আজকে কম্বল বিতরণ মানে কি 300 লোককে দান করা হচ্ছে। আগামী দিনে কি মানব সেবা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কি আরো অন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে? মানব সেবার পক্ষ থেকে অনেক প্রোগ্রাম করার জন্য সব আগে থেকে চিন্তা ধারণা করা আছে যে আরও মানে কি মানুষদের জন্য যেমন চোখের অপারেশন করা, হেলথ চেক আপ আর গাইনের ডাক্তার দিয়ে মহিলাদের দিকে চেক আপ করার জন্য। কারণ কি মহিলাদের কাছে তো মানে টাকা থাকতে ওরা মানে কি দেখো কোনো জিনিস কিনে না, ওটা রেখে দেয়, বলে কি আমার ছেলেদের না কাজ লাগবে। কিন্তু আমরা ওষুধপত্র দিয়ে গাইনের ডাক্তার বলে মহিলাদেরকে চেক আপ জন্য, হেলথ চেক আপ জন্য আর অনেক যে বৃদ্ধ মানে কি আছেন মানে বুড়ো বুড়ি তাদেরকে মানে কি কোনো দিন মানে চোখের জন্য মানে খুব অসুবিধা হয় অপারেশনের জন্য, তো আমরা ক্যাম্প লাগিয়ে ওনাদেরকে চোখে অপারেশন ফ্রিতে চেক ক্যাম্প করার জন্য আগামীকাল আবার শীত বিতরণ আবার কম্বল আমরা চান্দা করে আমরা ইকট্ঠা করছি তাদেরকে দিবার জন্য। আবার দেখবো কি মকর সংক্রান্তি পর যদি পাওয়া যায় আবার আমরা। আপনার পরিচয়? আমার নাম হলো মানব সেবা ट्रस्ट सतेंद्र प्रसाद, ग्रामीण चिकित्सक। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा
आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमत का मौका। शिल्पांचल के बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत का मौका मौजूद है। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 133 आदमियों के लिए भर्ती अमल का ऐलान किया गया है। ताहम ये तमाम पोस्ट ग्रुप डी कैटेगरी में है। बेशतर ओहदों के लिए 8वीं पास की अहलियत तलब की गई है। तकर्रुरी इंटरव्यू और जिस्मानी कारकर्दगी पर मुबनी होगी। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कमिश्नर के जारी करदा ऐलान के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र के अफराद 133 ओहदों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। दरख्वास्त से मुतालिक मालूमात और फॉर्म दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकारी वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट। जलबपुर आश्रम के लोगों ने शिकायत की है कि सड़क की नाली नहीं बनी है। मुतअद्दिद बार काउंसलर से लेकर MLA तक मेयर को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया। इंजीनियर आया है और पैमाइश और मुआयना किया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। लिहाजा इन्हें सड़क पर बैठकर एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ा। मनुतोष मुखर्जी और सब ने नार्दमा के बारे में गलत यकीन दहानी करके वोट लिया, लेकिन देहातियों को नार्दमा सड़क नहीं मिली, इसलिए नियामतपुर चितरंजन रोड आज ब्लॉक कर दिया गया। हमारा मुतालबा है कि इस वक्त तक नाकाबंदी जारी रहेगा जब तक कि गांव की सड़कें और गटरों को फौरी तौर पर साफ नहीं किया जाता है। आखिरकार ये रोड तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम रहा। कोरंगी कुल्टी पुलिस चौकी पुलिस ने आकर देहातियों से बात की और इन्हें यकीन दहानी कराई कि इन्हें तमाम शिकायत से मुतला किया जाएगा और MLA के इल्ज़ामात को पूरा किया जाएगा। से एहतजाज को फौरी तौर पर रोका गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। रानीगंज आसनसोल जुनूबी असेंबली के तहत रानीगंज पंचायत में JK नगर की मरकजी सड़क एक तवील अरसे से नाकारा हालत में है। इससे कबल 40 लाख रुपए की लागत से इस सड़क की मुरम्मत की गई थी, लेकिन वो सड़क ज़्यादा देर तक ना चल सकी। रानीगंज में ममता बनर्जी के इंतजामी इजलास ने AJK नगर में रोड का इफ्तिताह किया। अड्डा के चेयरमैन और आसनसोल जुनूबी MLA तापस बनर्जी ने आज अड्डा के जानिब से 1.24 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का संग बुनियाद रखा। नीमचा, बरबंगा, तिरात, राधा और रानीगंज जैसे देहात हैं। अहल इलाके बहुत खुश हैं कि ये सड़क वहाँ है, क्योंकि इनका बयान था कि इस सड़क पर सफ़र करना नामुमकिन था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। खासकर बारिशों के मौसम में 1 या 2 हादसा की इतला देना बहुत मुश्किल था। JK नगर रोड से इतने ही गांव के लोगों को फ़ायदा होगा जितने के आसपास के लोगों को। रानीगंज पंचायत समिति के सदर बनोदी नोनिया, जमारी पंचायत माजी के चीफ आर्टिस्ट, जिमारी पंचायत के मेंबर तरकेश्वर राय, तपन मुखर्जी और बहुत से दीगर मौजूद थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। कुल्टी में मुल्क भर में किसानों और मजदूरों को इनके बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले उरूसी फ़न और फतह के लिए गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल उर्द समगाम का एहतमाम आज मुल्क व बैरून मुल्क की तमाम इकाइयों ने किया। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल मगरबी बंगाल ब्रांच के चीफ सेक्रेटरी सरदार गुरुविंदर सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में आज गुरुद्वारा साहिब बरकरार में मरकजी अरदास समागम मुनक़द हुआ। गुरबानी गुरु इत्तेहाद और सिख इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जीतने की हथकंडों की तरह है। गुरुविंदर सिंह जी ने कहा कि ज़राअत काबिल जो काला कानून है, इसके निफाज से
ब्लैक मार्केट को फ़रोग मिलेगा और ज़रूरी मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा और आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि दुनिया समेत सबसे पुरअमन तहरीक पंजाब समेत दीगर रियासतों के किसानों की तरफ से चलाई जा रही है और इन्हें यकीन है कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के हक़ में फ़ैसला करेगी। इस मौके पर सरदार जतिंदर पाल सिंह, हरदीप सिंह, बलदेव सिंह, जसबीर कौर, गुरप्रीत सिंह और वराकर शहर के दूसरे लोग मौजूद थे। रानीगंज में तृणमूल धड़े के सरबराह और नायब सरबराह के न आने पर रानीगंज पंचायत समिति के सदर ने चार्ज संभाल लिया। इन्होंने दावा किया कि 11 पंचायतों के सरबराह और नायब सरबराह दोनों 2 दिन से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हेल्थ पार्टनर कार्ड, कुछ अरसे बाद कबाइलों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इन्हें क्या ज़रूरत है, और राशन कार्ड लोग 2 दिन से वापस जा रहे हैं। इसके नतीजे में मगरबी बर्दवान के डीएम और रानीगंज कुल्टी डेवलपमेंट ऑफिसर इस 11 पंचायत ऑफिस में अपने दफ्तर तक मुश्तरका करना, तब तक मैं हर दिन हर 2 घंटे बाद आज खुद आऊँगा। कुछ दिन पहले तृणमूल की 2 जमातों के मेंबरान रानीगंज की 11 पंचायतों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को काम में शामिल होने से रोकने की वजह के तनाज़े में शरीक हो गए थे। मालूम हुआ है कि बीडीओ ऑफिस के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोमनाथ चंद्र को 14 दिसंबर को 11 ग्राम पंचायतों में काम में शामिल होने की हिदायत की गई थी। जब वो काम पर आए तो इन्हें भी इस काम में शामिल होने से रोक दिया गया था। ये इल्ज़ाम है कि पंचायत के 10 मेंबरान, जिनमें चीफ, डिप्टी चीफ भी शामिल थे, ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दफ्तर में काम करने से रोक दिया। जैसे ही इन्हें इसका इल्म हुआ, पंचायत के 4 मेंबरान और कुछ मुकामी निचली कारकुनों ने इस अफसर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस काम में शामिल हो जाए। इस मसले के गिर्द दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल मामूल पर लाई। अगरचे पंचायत के सरबराह रीना दास वजीर मोलाई घटक का मसला पेश करने के बाद दफ्तर से बाहर चले गए, लेकिन पंचायत मेंबर अशोक हिला समेत मुतअद्दिद निचली कारकुनों ने पंचायत चीफ का दफ्तर बंद कर दिया। ताहम निचली चीफ पंचायत मेंबर अशोक हिला समेत निचली सतह के कारकुनों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस तरह पंचायत की सरबराह रीना दास इनके घर पहुंच गई और इन्होंने दावा किया कि इनके साथ नारवा सलूक किया गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। आसनसोल में बुध के रोज आसनसोल सीबीआई अदालत में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बदनाम जमाना गाय स्मगलर इनामुल हक, मवेशी स्मगलर इनामुल हक पेश किया गया, जहां से सीबीआई के जरिया एक डायरी अदालत में पेश की गई, जिसमें करोड़ों के लेन देन का इंकशाफ हुआ था, जो इनाम ने मुल्क के गोरे लोगों को दिया है। इसके अलावा सीबीआई ने इनामुल के 26 बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन की दस्तावेजात अदालत में पेश की और सीबीआई की जानिब से अदालत को एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें जिक्र किया गया है कि इनामुल एक शैतानी मुजरिम है और रिमांड के दौरान इसने सीबीआई अफसरान को देखने की खुली धमकी दी गई है। इस मामले में बीएसएफ कमांडेंट संतेश कुमार के जमानत पर मोबाइल वापस करने के लिए सीबीआई अदालत में आज दरख्वास्त दायर की गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के फारूक रजाक और वांग शेखर कुंडू ने समाअत के बाद जमानत तलब की, लेकिन सीबीआई के वकील राकेश सिंह ने इसकी सख्त मुखालिफत की। जमानत पर फैसला अभी बाकी है। मंगल के रोज कोर्ट में मशरकी बर्दवान में मंगल कोर्ट में शदीद सियासी हलचल देखने को मिला। मंगल कोर्ट में नौतन हाट बर्दवान बादशाही रोड पर नौतन कृष्णा मंडी के दरवाजे पर सैलून की दीवार पर कांग्रेस का बैनर, जिसमें मंगल कोर्ट पर मुकामी एमएलए और वजीर मुमलिकत सिद्दीकुल्ला चौधरी की तस्वीर है, सनसनी फैल गई। ताहम ये फ्लेक्स 2-3 घंटे के लिए था। रियासती कांग्रेस के सदर अधीर चौधरी की भी एक तस्वीर थी। बैनर पर लिखा था, हम 2 दादा भाई के पैरोकार हैं, हम सिद्दीकुल्ला चौधरी और अधीर रंजन चौधरी को एक साथ देखना चाहते हैं। बशुक्रिया मंगल कोर्ट जोन कांग्रेस। मंगल कोर्ट में कांग्रेस साइन बोर्ड में तब्दील हो गई। बहुत सारे सवालात हैं। यही वजह है कि रियासत के अक़लियती रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत सिद्दीकुल्ला चौधरी के मंगल कोर्ट में ऐसी ही लचक है। असेंबली इंतखाबात चंद माह बाद होने वाले हैं, ताहम मुकामी एमएलए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इस तरह का सियासी दावेदार होने का दावा किया है। तृणमूल के कारकुनों में शक की फिजा पैदा करने के लिए सिद्दीकुल्ला इस तरह के वाक़यात पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस के रहनुमा इस तरह के बारे में कोई तबसरा करने को तैयार नहीं है। सोमवार की सुबह
सनीचर को मार्केट का दिन था। मंगलकोट के मुख्तलिफ देहात से सैकड़ों मुकामी लोग मार्केट आए थे। इसके बाद सवालात उठ रहे हैं, तो क्या मंगलकोट के एमएलए सदीकुल्ला चौधरी और कांग्रेस के तरफ झुकाव रखते हैं? ये सवाल पूरे मंगलकोट में उठना शुरू हुआ। कुछ दिन पहले साबिक रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट शुवेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। रियासत के दो दीगर वज़रा राजीव बनर्जी और सुधना पांडे के बारे में कई अफवाहें हैं। इसी दौरान काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि ये एक और तृणमूल धड़े की हरकत है। एमएलए शबीर ने कहा कि पार्टी की जानिब से सिर्फ सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा गया है कि वो मंगलकोट में अगली असेंबली की तैयारी करेंगे। इस बदनाम करने की साजिश रची गई है। आसनसोल में मुंदरजा ज़ैल त्यौहार वाली ट्रेनें इनके चलने की मुकर्रर तारीख और वक्त के मुताबिक चलती रहेंगी। 02352 राजेंद्र नगर हावड़ा खसूसी ट्रेन 31 जनवरी 2021 तक। 02351 हावड़ा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन 1 फरवरी 2021 तक। 05272 मुजफ्फरपुर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 26 जनवरी 2021 तक। 5271 हावड़ा मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 27 जनवरी 2021। 05098 जम्मू तवी भागलपुर स्पेशल ट्रेन 23 मार्च 2021 तक। 05097 भागलपुर जम्मू तवी खसूसी ट्रेन 25 मार्च 2021 तक। 02495 बीकानेर कोलकाता स्पेशल ट्रेन 28 जनवरी 2021 तक। 02496 कोलकाता बीकानेर स्पेशल ट्रेन 29 जनवरी 2021 तक। 03236 दानापुर साहिबगंज खसूसी ट्रेन 31 जनवरी 2021 तक। 03235 साहिबगंज दानापुर खसूसी ट्रेन 31 जनवरी 2021 तक। 03242 राजेंद्र नगर बंका खसूसी ट्रेन 31 जनवरी 2021 तक। 03241 बंका राजेंद्र नगर खसूसी ट्रेन 1 फरवरी 2021 तक। ये काबिल ज़िक्र है कि 1 जनवरी 2021 से 02352 राजेंद्र नगर हावड़ा स्पेशल के सफ़र के दौरान यह क़याम मनानपुर मशरकी वस्ती रेलवे के तहत से और 02351 हावड़ा राजेंद्र नगर स्पेशल के 2 जनवरी 2021 से मनानपुर के सफ़र के दौरान उठाया जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत ये क़याम उठा लिया जाएगा। रानीगंज में मारुति वैन ट्रेलर वैन से टकरा गई, एक शख्स हलाक हो गया। थाना रानीगंज के मंगलपुर ओवरब्रिज पर नेशनल हाईवे 2 पर बुध की शाम मारुति वैन का ट्रेलो फटने से इस हादसे में एक की मौत हो गई। मतोफी की शनाख्त नहीं हो सकी। मतोफी की उम्र करीब 45 साल है। भेरंगी दुर्गापुर के रिहायशी 56 साल अशोक बादयाकर जख्मी होने की वजह से इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक एक शाम मारुति वैन आज शाम आसनसोल से दुर्गापुर जा रही थी। थाना रानीगंज के मंगलपुर ओवरब्रिज के सामने मारुति कार ने पीछे से ट्रेलर को टक्कर मार दी। मारुति कार का ड्राइवर और इसके साथ का एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये इतला मिलते ही थाना रानीगंज के पंजाबी मोड़ पोस्ट के पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद इसे बचाया और आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने इनमें से एक को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने बताया कि मारुति का जख्मी ड्राइवर दुर्गापुर के विरंगी का रिहायशी था। पुलिस हलाक शदगान की शनाख्त का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आसनसोल में कलकत्ता और गोरखपुर के माबेन मुकम्मल तौर पर महफूज त्यौहार की खसूसी ट्रेनों का सफ़र इनके सामने जाहिर होने वाली तारीखों तक जारी रहेगा। 0504850 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल का खसूसी ट्रेन 30 मार्च 2021 को अपने मुकर्रर करदा दिनों इतवार, सोमवार, मंगल और जुमा को जारी रहेगा। ये ट्रेन अगले दिन 11 बजे आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 4 बजे रवाना होगी। 05050 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल का खसूसी दौरा इनके मुकर्रर करदा दिनों बुध और शनिचर पर 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। ये ट्रेन अगले दिन 11 बजे आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 4 बजे रवाना होगी। 05052 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल का खसूसी दौरा इनकी नामजदा करदा दिनों जुमेरात को 25 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। ये ट्रेन अगले दिन 11 बजे आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 4 बजे रवाना होगी। 05047 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल खसूसी टूर 1 अप्रैल 2021 को अपने मुकर्रर करदा दिनों सोमवार, मंगल, जुमरात और शनिचर को जारी रहेगा। ये ट्रेन इसी रोज़ 6:17 पर आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 6:22 पर रवाना हो जाएगी। 05049 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल का खसूसी
दौरा इनके नामजद करदा दिनों इतवार और बुध 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। ये ट्रेन इसी रोज 6:17 पर आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 6:22 पर रवाना होगी। 05051 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल का खसूसी टूर अपने मुकर्रर करदा दिन जुमा को 26 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। ये ट्रेन इसी रोज 6:17 पर आसनसोल पहुंचेगी और वहां से 6:22 पर रवाना होगी। आसनसोल में शिवलरी राउंड टेबल 322 ACRT आसनसोल को साफ सुथरा बनाने के लिए कच्ची आबादी के इलाकों में बैतुल खुला की तामीर, बुध के रोज काली पहाड़ी के गांव पेरोल डंगाल में इस समाजी तंजीम आसनसोल शिवरी राउंड टेबल 322 के अरकान ने इफ्तिताह किया और इसका इफ्तिताह करने के बाद जिस पर लगभग 20,000 रुपये खर्च हुए, इंस्टीट्यूट ने हर माह बैतुल खुला बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। ये बैतुल खुला दशमानदा और कच्ची आबादी वाले इलाकों में तामीर किए जाएंगे। ये इनका तैयार करदा चौथा टॉयलेट है, जिसके दौरान आसनसोल शिवरी राउंड टेबल IPC मनीष बागडिया, सदर अभिषेक शर्मा, सेक्रेटरी नितिन खिमानी, HT राकेश गोपालका, शिबरा नारायण गुराई समेत पूरी टीम मौजूद थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये तंजीम मुख्तलिफ समाजी कामों में मुस्तकिल तौर पर सरगर्म रहती है। मुआशरे के गरीब लोगों की खिदमत के लिए साल भर इदारे के मेंबरान की जानिब से मुख्तलिफ अफ़आल इंजाम दिए जाते हैं। रियासत की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 क्लास के 9.5 लाख तलबा को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन रकम का गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए रकम हासिल करने के लिए क्लास 12 के तलबा को ज़रूरी दस्तावेज़ात फ्राहम करना होगा। इससे मुतालिक हिदायत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। स्क्रीन के सामने टैबों के साथ तस्वीर खींचते हुए मुताल्लिका हर तालिब इल्म को रसीद के साथ साथ इसे स्कूल में भी जमा करवाना होगा। तमाम तलबा के बैंक तफसीलात 3 जनवरी तक महकमा तालीम के पोर्टल में अपलोड करना होगा। इस वक्त 15 फरवरी तक रसीद और तस्वीर जमा करना अपलोड करना पड़ेगा। 28 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट की जांच होगी। अहम बात यह है कि इससे कबल वज़ीर आला 12वीं जमात के तलबा को टैब देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना बहरान की वजह से कोई भी कंपनी इतने टैब ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकेगी, तो इन्होंने सबको 10-10 हज़ार रुपये देने का फैसला किया है। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इट्स नॉट द कलर फॉर आवर स्किन दैट मैटर्स, इट्स द कलर ऑफ आवर थाट्स एंड द मैसेज वी स्पीक। ये आपकी जिल्द की रंगत नहीं है जो मामलात हैं, ये हमारी सोचों और हमसे बात करने वाले पैगाम का रंग है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।